सो गुड मॉर्निंग ऑल। देखो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देखे थे कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ some trigonometric functions like integration of tan x, integration of cot x, okay, integration of sec x। ये चीज हम लोग पहले से ही देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा sec x और cosec x की तरफ चलेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल होगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। सो suppose I have to find out the integration of sec x. So suppose I have to find out the integration of sec x dx. Okay. Suppose I am multiplying sec x plus tan x in both numerator and denominator. Okay. Suppose I am multiplying sec x plus tan x in both numerator and denominator. Okay. Then तब क्या होगा, दिस इक्वल टू, इन द न्यूमरेटर आई हैव sec square x plus sec x into tan x, and in the denominator I have sec x plus tan x dx. Okay. Suppose I am taking sec x plus tan x as t. Let sec x plus tan x equal to t, and differentiating both the side with respect to x, then this will becomes d by dx of sec x plus tan x equal to d by dx of t. So this implies that d by dx of sec x will be sec x into tan x plus derivative of tan x will be sec square x dx equal to dt. दिस इज हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, नहीं वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। तो अब क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू, देखो sec x plus sec x into tan x plus sec square x dx उसके न्यूमरेटर में है, तो वो चेंज हो जाएगा dt में, और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या लिए हैं, t लिए हैं। सो dt by t, and this will becomes ln t plus c. So implies that integration of sec x dx will be ln t की जगह पे हम लोग को मिला है sec x plus tan x, sec x plus tan x plus c. So this is the formula for integration of sec x, that is ln sec x plus tan x plus c. तो ये एक फॉर्मूला है तुम लोगों का, जो तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ sec x का, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cosec x का। तो अभी हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। So integration of cosec x, ये चीज हम लोग को फाइंड आउट करना है। सपोज आई एम मल्टीप्लाइंग
cosec x minus cot x in both numerator and denominator. Cosec x minus cot x in both numerator and denominator. तब ये क्या होगा देखो, then this equal to ऊपर जो है क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x बन जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे है cosec x माइनस cot x dx. ओके, देन हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, लेट जो डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग t ले लेंगे, लेट cosec x minus cot x equal to t, then by differentiating both sides with respect to x we got the derivative of cosec x is minus cosec x into cot x and minus the derivative of cot x is minus cosec square x equal to dt by dx. So this implies that minus minus will be plus, so cosec square x minus cosec x into cot x dx will be dt. So this is the part of substitution. तो अभी देखो हम लोगों को मिल चुका है ऑलरेडी, क्या मिल चुका है कि cosec square x minus cot x, सॉरी cosec square x minus cosec x into cot x dx, ये जो न्यूमरेटर में जो है वो क्या होगा, dt है. So this will be, so this is equal to integration of ऊपर जो है वो dt है, नीचे जो है वो t है. This is equal to ln t plus c. So this implies that here we got integration of cosec x dx is equal to ln cosec x minus cot x plus c, which is the formula to find out the integration of cosec x. ये और एक फॉर्मूला है cosec x का. तो इसमें हम लोग की जो एक्सरसाइज में है इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस दिया है, मतलब जो कि क्वेश्चंस जो है वो क्या होगा तुम्हारे सब्स्टिट्यूशन को लेके है, हमारे एक्सरसाइज 7.2 में, ठीक है, 7.2 में, मतलब उसी से रिलेटेड तुम्हारा क्वेश्चंस जो है सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड. तो उसमें तुम लोग को खाली देखना है किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है, किसकी जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि उसको हम लोग इंटीग्रेट कर पाए, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो कोई भी फंक्शन को हम लोग कर सकते हैं, बट जो इंटीग्रेट हम लोग सारे जो फंक्शन है उसको हम लोग इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसका डिफरेंट मेथड्स है. तो ये जो था तुम लोगों का पहला मेथड था, एंड द मेथड इज इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन को लेके इंटीग्रेशन हम लोगों को कैसे करना है, ठीक है. तो आगे हम लोग इसमें देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके कैसे हम लोग उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे. ओके, तो सेकंड मेथड उसको हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. So give the heading integration by using trigonometric identities. Integration by using trigonometric
आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो पहले से। आइडेंटिटीज मींस जो फॉर्मूलाज जो है उसको हम लोग यूज करके कैसे इंटीग्रेशन ये करेंगे। तो ये जो मेथड है इसको हम लोग समझेंगे एग्जांपल को लेके, ठीक है। एग्जांपल लेके इस जो मेथड जो है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला जो एग्जांपल है वो है सपोज आई हैव टू फाइंड आउट द integration of suppose sin square x दिया है, sin square x तो sin cube x दिया है, sin cube x को इसमें दिया है, ठीक है। तो sin cube x इसमें अगर दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग कैसे निकालेंगे। तो दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x इंटू इसको sin x कर लेते हैं। तो देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इसमें किसी भी टर्म को t ले रहे थे तो क्या बन जा रहा था, उसको डेरिवेटिव करते तो बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म जो है वो dt बन जाता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्टली तुम लोगों के गिवन नहीं है कि इसको हम लोग sin x को t लेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x आएगा तो cos x dx dt बनेगा। लेकिन इसमें तो ऐसा है ही नहीं, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग करने के लिए क्या होगा, पहले इसको हम लोग क्या किए, sin स्क्वायर x इंटू sin x में इसको चेंज किए। अभी क्या होगा, अगर मुझे cos x का टर्म मिल जाए इसकी जगह तो क्या होगा, cos x को अगर मैं t ले जाऊंगा तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या आएगा, sin x आएगा। तो उसकी जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करके फिर क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दिस इक्वल टू सपोज sin स्क्वायर x को हम लोग cos x में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है that sin square x plus cos square x equal to 1. So in place of sin square x, I have 1 minus cos square x into sin x dx. So this is equal to, अब देखो अगर मैं cos x equal to t ले गया, let cos x equal to suppose t, so this implies that डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, minus sin x dx will be your dt. तो अब देखो सपोज आई एम टेकिंग 1 माइनस cos x की जगह हम t लेंगे तो t स्क्वायर इनटू sin x dx। तो दिस इंप्लाइज दैट यहां पे खाली sin x dx है, तो इन प्लेस ऑफ sin x dx आई है माइनस dt। तो इसकी जगह क्या आएगा, माइनस dt। सो माइनस जो है वो आगे आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 इनटू dt। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी। सो दिस इक्वल टू माइनस डी टी का इंटीग्रेशन खाली टी होगा प्लस टी स्क्वायर का टी टू द पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 दैट इज टी क्यूब बाय 3 प्लस सी एनी कांस्टेंट सी। सो दिस इक्वल टू माइनस टी इन प्लेस ऑफ टी आई है cos x plus cos cube x by 3 plus c। ओके, cos cube x by 3 plus c। तो इसी हिसाब से तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करके करना है। और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें सपोज आ रहा है एक क्वेश्चन सपोज दिया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इंटू cos x dx।
सबको इतना दिया है इसमें, ठीक है। तो क्या होगा देखो, इसमें हम लोग sin 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, छोड़ो इसको, 3x मान लो 5x ले जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग डायरेक्टली sin 5x को t नहीं ले सकते, तो अगर sin 5x को t ले जाएंगे तो उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा फिर क्या आएगा, cos 5x आएगा, तो उसमें हम लोग को फाइंड आउट जो करना होगा वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला था हम लोगों का, तो अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें तुम लोग क्या करना, पहले दिस इक्वल टू हाफ और इंटू 2 कर लेना, sin 5x इंटू cos x dx। तो हाफ और इंटू 2 करने से फायदा क्या है देखो, उसमें क्या है 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b। तो एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे sin a प्लस b, दैट इज sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, और sin a माइनस b ये क्या था, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। सपोज अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, cos a इंटू sin b, cos a इंटू sin b will cancel and I got 2 sin a इंटू cos b, इसकी जगह पे sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं हाफ इंटीग्रेशन ऑफ sin a प्लस b दैट इज 5x प्लस x प्लस sin a माइनस b दैट इज 5x माइनस x dx, बिकॉज इसमें लिख लेना 2 sin a इंटू cos b इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो दिस इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x प्लस sin 4x dx। तो इसमें तुम लोग फिर से सब्स्टिट्यूशन यूज करना, sin 6x का होगा माइनस cos 6x बाय 6 प्लस sin 4x का होगा माइनस cos 4x बाय 4 प्लस c, ओके। तो इसी हिसाब से तुम लोगों को इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तुम लोगों को करना है। तो आज तुम लोग करो, अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो उसमें से पूछो, और तुम लोगों के लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 7.1 सॉरी 7.2 एंड 7.3 उसका एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज, ओके।